أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. صدق الله العظيم. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum and welcome to Baran-e-Rahmat with me Sidra Iqbal. This is a traditional soulful beginning of our transmission every day जहां हम तिलावत कलाम पाक से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और आज हमने शुरुआत की सूरह मुज़म्मिल की इन आयात की तिलावत से जिसकी सादत हासिल कर रहे थे कारी असदुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया असद भाई, जज़ाकल्लाह खैरुन। और ख़ास तौर पे इनका इंतखाब करने की वजह ये थी क्योंकि आजकल फ़ी ज़माना हम मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरों से गुज़रते हैं, उनको पाते हैं जब it creates sort of anxiety in us. We wonder where are we heading? We wonder what is the essence of Ramadan? A season where we are supposed to come together, practice compassion, experience a community bond. But what we see around us is a lot of tension, challenges. Everybody seems to be in their individual problems. So in these verses of Quran, Allah subhanahu wa ta'ala once again reminds us to have faith and remain steadfast. He speaks about, अगर मैं उर्दू में आपको आखिरी आयत का तर्जुमा करके बताऊं, और वो जो दिल आज़ार बातें ये लोग कहते हैं उनको सहते रहो और अच्छे तरीक़ से उनसे किनारा कश रहो. It is a direct message to focus on the good. And if you have things around you that are bringing you down, which are causing you depression,
stay away from them. So you have to manage your state of mind, you have to continue focusing on the good, and you have to create the best of times. You have to be the best version of yourself. Some of these challenges come in our lives in order to bring out the best in us, and that's exactly what we are focused today on. और आज आप सोच रहे होंगे कि सिद्रा अपने प्रोग्राम में इतनी ज़्यादा अंग्रेज़ी क्यों बोल रही हैं? इसकी वजह यह है कि हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिव हों। आज हमारे मेहमान कुछ ऐसी शख्सियात होंगी जो उर्दू से नावाकिफ़ हैं, लेकिन यकीनन वो पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को बेहतर जानना चाहते हैं। वी हैव द न्यूली अपॉइंटेड ब्रिटिश डेप्यूटी हाई कमिश्नर ऑफ UK coming to our show today, and we are most delighted to welcome him. And of course, we will also have Ambassador Jameel Ahmed Khan Saab joining us. Both the gentlemen will talk about the spirit of Ramadan, what is expected, and how is Ramadan different in Pakistan and abroad. So stay tuned for that very important and very interesting conversation. We'll be back right after a short break. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बहरान रहमत, और जैसे मैंने आपको कहा था कि आज हमारे कुछ खुसूसी मेहमान हमारे साथ होंगे। सबसे पहले प्रोग्राम में वेलकम करना चाहेंगे एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब को। पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल रिलेशंस के मौज़ूआत पे आप इनसे हमारी गुफ्तगू सुनते रहते हैं। आज इट्स अ प्लेजर टू हैव हिम फिज़िकली पर्सनली इन द स्टूडियो। सो बहुत बहुत शुक्रिया जमील साहब फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आवर गेस्ट in the studios and in the city of Karachi is the newly appointed British Deputy High Commissioner to Karachi. We're very, very honoured to have in our studios Mr. Lance Dom. Thank you very much, High Commissioner, for being here. It's such a pleasure to have you, and please tell us about your first experiences of this city that has gotten warm really quickly. I promise you, this is not the usual march in Karachi, but I think this is a warm welcome for you. Thank you so much, and it's a great pleasure to be here in the studio. Thank you very much for inviting me, and it's a great pleasure to be in Karachi as well. I arrived 3 weeks ago, and you're right, it's a lot warmer than it was when I left London. 5 degrees and suddenly 30 degrees. So it's a big change, but it's a fantastic city. I've been so humbled to meet so many Karachiites already, and they've been extremely welcoming to me. I think you'll notice in a couple of more weeks that Karachi happens to be the most diverse and the biggest cosmopolitan city of Pakistan. It's literally a hub, a melting pot for so many cultures. Have you noticed the diversity? Absolutely. Before I arrived in Karachi, I was reading about it, preparing to come here, and I heard about the diversity and the vibrancy of the city and its cosmopolitan nature. And it was one thing that really attracted me to coming here. And since I've been here, I've really noticed it. You have people from all walks of life, all parts of Pakistan, internationally as well, and that cosmopolitan sense in the city is something which is really, really positive. And in terms of the architecture and the essence of the city is often lauded to be a colonial city. You'll see a lot of colonial times architecture around it. In fact, your own residence is quite historic and iconic. What's your impression of that? It has, you're absolutely right, it has buildings going back many hundreds of years to the modern day. I've been to some of the fabulous examples, Mohatta Palace, I've been to the Frere Hall, but also the Quaid-e-Azam Mausoleum, which of course is a more modern structure, but is a very, very beautiful place to be. Absolutely, very iconic and quite close to our studios as well. Jameel Saab, I'd love your comment on this as well. पहली दफ़ा जब कोई सफ़ीर किसी भी शहर में जाता है, आपका भी ये experience रहा है. Please tell us about your experience when you go to a new city, just like Lance has shared, you prepare for it. And in the modern day, of course, because of social media and internet and so many connections being vibrant, it's easier. But is it daunting to come to a new city or a new country? Well, it's always, one of the patterns, I would say, with the diplomats, that before you arrive in any city, you try and familiarize yourself, True. And by the time you reach there, you start feeling that, as soon as possible, you are able to feel at home, and that really breaks the barrier between the people and those who are
accredited to that country. And once that happens, the people-to-people relation and the public diplomacy, it starts just attaining a new trajectory. It takes a life of its own. Very And you true. make such deep connections and friendships. Like over the last many years, we've had several diplomats and several people from the diplomatic community come on the show. And the bonds we've created, even when they complete their term in Karachi, we sort of maintain those bonds. So Jameel Saab, what has been one of the most exciting experiences in your diplomatic journey? Which city or which country did you find to be the most fulfilling or inspiring? Well, UAE was one of those countries where I could find that I attended to the bilateral, of course, that was the purpose and that was the accreditation, and I was supposed to do that. But beyond that, it was multilateral diplomacy which came on my way, and that started attracting me a lot more in the international diplomacy and the global geopolitics. So that was one aspect. And second, UAE was one place where I found the diplomats, normally they were so seasoned that you can discuss with them anything, And once we would interact amongst ourselves, we would just touch upon not only the UAE dynamics, but also so many other happenings of the world, Right. which we will do that. And that was enriching, a mutual benefiting thing. So that was one aspect. Then the second aspect is that, our newly arrived diplomat, he's very fond of sports. You can see him, the fitness and the shape. So the diplomats, once they go there, and whatever they are good at and whatever is very close to their heart, they try and just propel that. But What- Jameel Saab, I must tell you, people are already fasting. It's a 12-hour fast, and we are still quite sore after the last cricket championship. Yes. So we'll probably stay away from the subject of that. But are there any other sports that catch your eye and you're passionate about? Well, Barring I cricket should for now. probably not talk about the cricket, but I have to say, I did go to my first day in Karachi was the 19th of February, which was the opening day of the ICC Wonderful. Champions Trophy, and I did manage to get to the Karachi Stadium. Everything was fantastic except the result, unfortunately. And then I went back again to see England against South Africa. Again, perfect atmosphere, great stadium. The only problem was the result. But I think we must celebrate the wins again. I mean, it's amazing that after so many years, an ICC championship was hosted in Pakistan. There were hiccups, there were problems, but what is your best takeaway from the experience? I just thought it was a great example of people coming together. There were fans in the match that I saw. I saw New Zealand fans, England fans, South African fans being in Karachi, enjoying the city and enjoying the cricket, even if the results didn't always go the right way. So mixing also with the local Pakistani people, which was a great pleasure to have all of these cultures together. I'm a fan of all sports, so I will watch cricket or football or tennis or golf. I'm really mad Since for you all sports. mentioned golf, we have a brilliant 125-year-old golf course in Karachi that you must visit, and I'm sure you'll absolutely enjoy the greenscapes over there. But Jameel Saab, coming back to the festival, to the holy month of Ramadan itself, I think as a diplomat, I would love your comment on the fact that every country of the world is now being as inclusive towards the diversity of the population as they can. We see examples of that in Canada, in Europe, and I was so pleasant. In fact, I started my show, the Ramzan transmission, with a special report on how the Leicester Square to the Piccadilly Circus this year, like the last year as well, we had the brilliant Ramadan lights go up in London. What's your take on that? This becomes such a month where the interaction among the people, the purification of your soul and heart, where you have all kind of activities such as the variety of food, such as showing the magnanimity of sharing your joys and sharing your whatever you have. So once the various events are arranged, not only by the people, but also there are various organizations, including the Bobbies of Scotland. They also arrange so many events of their own, and likewise, if you
go to any of the counties, place in UK, there would be some activity or the other. I think we Likewise in get the world. these brilliant examples of community spirit where I've seen various community spaces, including churches, being opened up for special prayers and special arrangements during the month of Ramadan world over and also in the UK. I was also very pleasantly surprised to learn about how the Windsor Castle opened the gates for over 1,000 people coming in and having iftar together. You're also rolling out the red carpet today. That's correct. I'm having my welcome iftar at my residence this evening. It's going to be a great occasion. Like I said before, I've been really humbled by the hospitality of the people of Karachi since I've arrived, and now it's my turn to host some of them at my It is so residence. interesting that you mentioned that because sometimes food and culture brings people together in a wonderful way. Very recently, right before Ramadan, we had the Canada Day celebrations that I was invited to, and one of the things I want to share with the gentleman here is that we had some kind of a culinary fusion happening there. So poutine happens to be a very famous offering of the Canadian cuisine, and we combined that with the nihari gravy, and it became nihari poutine. And then of course the lobster rolls got replaced by the local shrimp, and we had shrimp rolls happening. So can we expect to see some kind of a creative twist in the iftar today? Well, I'm not so. I don't know actually. That's a little secret for people to arrive this evening. But Karachi is famous for its food, and I've already had the chance to sample some of the magnificent biryani, pani puri, and so on. So I know that Karachi is a huge food city, and yeah, there's always a British twist. I mean, honestly, we consider Pakistani food almost to be British food because we eat so much of it in the UK. In fact, our chef today will be making a few of the things. When we were discussing the menu, I did recommend to her, let's do something chicken tikka related, because although it originated from this place, but UK and the British menus have adapted it to such a degree, and they can almost take our level of spice, heat. Jamil Saab, what do you say to that? I tell you, it's a novelty there. And all my British friends, while I was studying there, most of them would go to these restaurants where we have all these dishes. And at that time, I found that there were very few restaurants who would have katakat, or for that matter, halim. आपको याद होगा, बल्कि फॉर आवर व्यूअर्स हम बताते चलें, बाल्टी गोश्त बड़ा मशहूर है, जो कि कश्मीर से ओरिजिनेट करता है यूके में. इसके अलावा बिरयानी का भी जिक्र हो रहा था, और चिकन टिक्का जो कि वहाँ पे जब प्रोनाउंस किया जाता है तो उसको चिकन टिक्का मसाला कहते हैं. सो आज हमारे पास इस तरह की बहुत सारी हम देखते हैं शेफ़ सिमरा क्या बनाने लगी हैं. एंड मे बी इफ़ आई कैन रिक्वेस्ट द जेंटलमैन टू जॉइन मी इन द किचन एज वेल. बट फॉर दैट लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एंड बी राइट बैक. सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन. सैयदा सना की आवाज़ में आप ये खूबसूरत सी नात सुन रहे थे. और जिस तरह कहा जाता है कि ह्यूमैनिटी इज़ वोवन टुगेदर बिकॉज ऑफ दीज सॉफ्टर सेंटिमेंट्स एंड कंपैशन. वी ऑल वर्क टुवर्ड्स द ग्रेटर गुड. और ख़ास तौर पे जब हम दुआ की बात करते हैं, क्योंकि इस मुबारक महीने में हमारे हाथ अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हैं, हमारा दिल नम है और हम अल्लाह ताला से हिदायत मांग रहे हैं. इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर that prayer does not have a language. Prayer is a sentiment, it's a feeling that needs to be felt. And I think that spiritual connection guides the leadership, guides the humanity, and actually weaves us into one large indifferent commune. And that's exactly the kind of peace and prosperity we want, not just for Pakistan, but the entire world. High Commissioner, I think they specially chose this one for you so that we remain inclusive and you get the essence of the prayer. What are your sentiments about it? It was a beautiful rendition. It was very special, and I wanted to thank her for including that English language portion of that prayer. I think this is a universal value. I mean, in times of challenge, of troubles, we tend to hold on to that faith that better days are coming. Have you ever found yourself in your personal capacity ever holding on to faith was difficult, but somehow it's worked out, and any miracles that you'd like to share with us? Well, of course, there are always challenges in life.
and I've faced some myself, and sometimes private reflection, private compassion, and that feeling of family and community is what brings you through those difficult times. So this is a month of those things, of peace and community. And that's what, as you mentioned before, in the UK, it's a very special month in the UK as well. And that's one of the things that brings the UK and Pakistan together. You have that community in the UK which has origins here and vice versa, and that's a very powerful thing. And I think family values are universal. It's the same around the world. There is a certain tradition in Pakistan that if you're going for a big exam or a big task, or if there's a challenge, we tend to ask the elders of the family to make a special prayer for us. Do you have a similar equation back at home? Well, of course we have our special times of the year, Yes. whether it's Christmas or Easter or other things, and those are times for family, and those are times when we do meet up as a family and ask our parents and grandparents for advice and for assistance, and for that special feeling of family and community that you have at special times of the year. So it's been a real privilege for me to be here in Pakistan during the month of Ramadan. And I love the fact, Jameel Saab, that in the last couple of years, we see the gazetted holidays to be overlapping. I mean, we'll have the Eid, and right after that, I think just a couple of weeks down the line, we'll have Easter. And we've had, the Navratri and the other celebrations, the holy celebrations have come in. There are many who will be celebrating the equinox. So the world truly, the humanity really comes together in good times and in challenges as well. Absolutely, and this interfaith, Harmony. the very concept of it, all these things, they are the tools and they are the basic engines to really bring the humanity together. See, at all occasions, any part of the world, people do offer prayers for someone else, for some resolving some issues, some problems. Even Pope was sick, and the entire prayer was really held, the convention was held Yes. for him, and he's recovered. And I think So- whenever we find out that there has been any tragedy, or if there's a natural catastrophe or a calamity, I think irrespective of what faith you belong to, or what nationality you have, what color of your skin might be, what neighborhood you live in, you feel that pull towards another person's pain. And I think that what really makes us human, and that what makes us heart to be tender and warm. But I think another thing that we pray for during the month of Ramadan is that the fast time goes really swiftly, and that we can head towards the iftar. And there's special things and snacks that we prepare. Have you become familiar with some? Some of them, absolutely, yes. I've been to a few iftars already. Tonight will be the first time I'm hosting, but the food is very, very nice. So we have a very talented chef with us, Chef Simra. How about I take you to the kitchen, and maybe we can help her out with a couple of things, and That that would could be be our great. little way of helping her and putting our little I'm not so contribution talented, to I it. must confess, so she'll have to be... We'll just be her sous chef today, please. Thank you so much. Simra, Hello. Aaj kya bana? What are you making today, and what would you like our help in? We have you two novices are here. We are not at your level of expertise, but we'd be happy to help. Yeah, you guys can marinate our chicken tikka. We are going to make chicken tikka. Oh, she did incorporate the chicken The tikka. chicken tikka, I feel right at home. Please come Yeah. forward. Okay. I You think can there's chop the spring vegetables. onions Shall I chop and the this? capsicum. Ah, yes, okay. Your chopping skills are going to be tested. Meanwhile, I can just make sure that the yogurt is smooth. It's Can very add these relaxing 3 to chop. condiments in that. Okay. Under her supervision and guidance, we'll be making something great. We're just doing a little bit of it. Do you cook at home? I do cook at home sometimes, What's not your all the time. What's the thing that you make best? I like to cook pasta. I cook pasta, it's very simple, which is perfect for me, and with all sorts of different sauce, just tomato sauces, some vegetables, to keep it really nice and simple, but Is this daunting when you look at these spices? They're so red and fiery. they look wonderful, I must say, but I do have to, I'm a little bit worried about when it's super hot, so I have to be a bit careful with that. But no, it makes it so colourful and tastes so great. So It is said that when the British came to India, they were absolutely blown away with the diversity of spices we have. So there's the strong aroma of the cardamom, of the jeera, of the cinnamon. Does that attract you, or does that put you off? no, it's absolutely wonderful. As I say, I have to take it step by step with the spice level, but no, it tastes incredible.
And I love the fact that at so many places in, of community, I've noticed in UK now they have a very strict code in place. So they make sure that it doesn't offend anyone, it doesn't put people in an awkward situation. So I've noticed that even if you go to the Commonwealth Secretariat, they'll make sure that the caterers are inclusive. There's no beef, there's no pork, there's always an option of non-alcoholic drinks available for any gathering. I think that's a brilliant step forward. You know, there's people in London especially, but not just London, all around the UK are very conscious that we have people from different backgrounds, different religions, different ethnicities, and of course we just want everyone to be comfortable. Yes, and I think we should embrace a little bit of that, because if you go to a Pakistani restaurant, you'd hardly find vegetarian options. I hope, do you have any dietary restrictions? No, I eat everything. So you're good, you're Yeah, lucky. I'm If you're lucky. not a meat eater, and if you're in Karachi, then your options are truly limited. Well, I'm fortunate. I have no restrictions. So no, I haven't been to as many Karachi restaurants as I'd like to just yet. We brought the restaurant right here, and the chef is right This here as smells well. fantastic as well. Simra, आप क्या बना रही हैं? Please, if you'd let us know, because we Minced see beef it to cups. be okay. Minced beef cup and chicken lollipops. Chicken Oh, lollipops. okay. Are they the tikka flavored ones? No. They're separate. So you've gone like all guns blazing today. Yeah. Wonderful. And you're not making any drinks? No, not today. If you want to, I can make lemon mojito for you. I think you should do that, because we'll figure something out. Maybe it would be nice and refreshing. Yes. I also want to ask you, since you're hosting the iftar today, are you symbolically going to fast for a couple of hours? Certainly, yes. of Okay, so course. it begins now. It begins now. It begins now. Okay, so our chopping is done, Simra. What else would you like us to do? You can add these 3 condiments in that for our tikka masala. These 3? Yeah. Okay, and what all are these? So this is the Lemon 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 juice. juice. In goes the lemon juice. Are we getting it? Ginger इसका तो garlic close up paste. लें. Wait. Oh. We'll make a close up of this. Sorry. भाई इनके साथ लेना. अब रोज थोड़ी हाई कमिश्नर हमारे लिए कुछ बनाते. I should stir that a little bit. Yes, of course. Frontal Stir that in. frontal लें, पूरा लें ताकि we can show him. Yes, that's There we the go. one. It looks Okay. great. Okay. Ginger garlic paste. Ginger garlic Now, is this paste. going to come out? I need a little spoon. Oh no, There here you it go. comes. Here it comes. All of it? Yeah. All of it? Okay, here we go. Apparently, this is what takes the. Yes, it Smells smells really of ginger. nice. Smells of ginger. And Very tikka gingerly. masala. Stir that in a little bit. And the very red tikka Oh, masala. that looks incredible. That is very familiar. Chicken masala. all Oh, of it all goes of it? in. Yeah. Well, You didn't say that I should. Oh no, that's too much. so this is today. Maybe The I should- spice level is very Pakistani, You know what? not British. Why don't I take That's- out? that's absolutely that's okay. absolutely Okay. fine. Yeah. All right. We'll just add more. You know what we do in Pakistan? If there's something that goes Yeah. a little bit more than Yeah. the desired quantity, we'll just add more chicken, more chicken, and Yeah. more yogurt. You see, I told you that I wasn't very I think very you've done a- experienced in the in cooking. So You've now done a I very- know to take it easy a little bit on the No, tikka. I think it's done really well. Is this the color you wanted? Yeah. So now we are going to add the chicken. अच्छा ये marinate तैयार हो गया. We're going to add the chicken. How Okay. long should we marinate it for? 1 hour or overnight. Okay, Yeah. okay, that really helps. If you are cooking it like you don't have time, you can marinate for 30 minutes or 1 hour, Okay. or you can marinate it for like overnight. And that It will tastes a give- little bit that better, yeah. enhance the flavors. Of course. Wonderful. We'll have you pose with the marinade All right. so that we take a nice picture. Can we take a nice picture, Faransa? Yes, there we go. Not very often do we have food diplomacy happening, but food is what brings people and communities and everyone together. Thank you for that. Our Okay. chef is going to add the chicken. Shall we beg your leave, ma'am? Yeah, sure. Thank Thank you you so so much much. for helping. Thank you. My It was pleasure. a pleasure. Jameel साहब, आपने देखा है इस तरह हम food diplomacy? It was mouth-watering, and I could start, feeling the aroma of it. नहीं, I feel- Difficult to resist, in the month of Ramadan. I think assimilating yourself with the local cultures is Correct. so essential, and whenever we see that happening, it's very heartwarming. High Commissioner, what would you like to say at this occasion? I once again, on behalf of Karachi and behalf of Pakistan, we welcome you to our wonderful city, the City of Lights. We're very excited about your term over here. Is there a message for Ramadan, for Eid, that you'd like to give to our viewers? I just want to wish everyone Ramadan Mubarak. I think it's a wonderful time to spend with family and friends. That's your camera. To enjoy. Sorry. Ramadan Mubarak. I think it's a great time for everyone to enjoy, to spend time with their family, friends and community.
I wish everyone a wonderful month of Ramadan. Thank you for that. Jamil साहब, would you like to give a message for Ramadan to all our viewers? आप उनसे कुछ कहना चाहें, ख़ास तौर पे ताकि हम आपसी मोहब्बत को, भाईचारे को बढ़ा सकें? देखिए, यही तो मौका है, यही तो महीना है जिसमें कि न सिर्फ भाईचारा बल्कि एक दूसरों के लिए अख़वत, एक दूसरे के लिए मोहब्बत और फिर अपनी रूह को प्योरीफाई करने के लिए भी एक बहुत अच्छा मौका होता है। और ख़ास तौर पर जो डिप्टी हाई कमिश्नर साहब ने मैसेज दिया है रमज़ान के हवाले से, उसकी भी आप अगर अफादियत और वैल्यू देखें तो वो इंसानियत को करीब लाने में और फिर रमज़ान के महीने में तो हम हर शख्स से ईद और रमज़ान पे अपनी खुशियाँ शेयर करते हैं। तो आज इन्होंने भी हमसे अपनी खुशियाँ शेयर की हैं और इनका स्टाइल देख के अंदाज़ा होता है कि काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। ही इज़ क्वाइट इंटरेस्टेड इन all these cuisines, it appears. Absolutely, Jamil Sahab, it was such a pleasure and an honor to have you both gentlemen on the show. I think it is diplomats like yourself who do a great service for not just their own countries and nations, but for the entire world in bringing people together. And as we head for another break, I'm very happy to welcome another wonderful voice of Pakistan, one of the most popular naat reciters of the country. We have with us Mr. Asad Ayyub. Asad, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ हमारे सुफरा मौजूद हैं और यकीनन इस्लाम भी हमें यही दर्स देता है कि भाईचारे से और एक दूसरे से मोहब्बत से हम कैसे पेश आएँ। तो इस मौके पे कुछ कहना चाहें और उसी के साथ अगर एक कलाम की आपसे दरख्वास्त करूँ। मैं सबसे पहले आपको वेलकम करूँगा और दुआ गो कि अल्लाह ताला हमारे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को और मज़ीद बेहतर बनाए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैरन। आप सुन रहे थे ये खूबसूरत सी हम्द और नात हमारी प्यारी ज़ैनब फ़ातिमा की आवाज़ में। और अब नए मेहमानों को प्रोग्राम में हम दावत देना चाहेंगे और आज का मौजू बड़ा ज़बरदस्त है। आपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में देखा कि 2 सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थे और यकीनन सुफ़रा की जो अहमियत है किसी भी सोसाइटी के लिए भी, किसी भी मुल्क के लिए वो बड़ी अहम है। लेकिन हर हम में से शख्स किसी न किसी मौके पे अपनी कम्यूनिटी का, अपने दीन का और सबसे बढ़कर अपने मुल्क का सफ़ीर होता है। तो क्या हम अपने नौजवान नस्ल को, हमारी आने वाली नस्ल को उसी अंदाज़ में ग्रूम कर रहे हैं कि वो इंटरनेशनली पाकिस्तान का बेहतरीन रुख दुनिया में दिखा सकें? आए दिन हम इसके हवाले से कंप्लेन सुनते हैं जिससे हमारा सर शर्म से झुक जाता है कि ये जो अंदाज़ है हमारे, वो यकीनन एक सिविलाइज्ड, एक महज़्ज़ब माशरे में शायद हमें ज़म होने से रोकता है। कई दफ़ा इसकी वजह गुर्बत को या तालीम की कमी को कहा जाता है। लेकिन आज हमारे इस पैनल में, जिसमें यकीनन सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह हम पाकिस्तानियों को, आने वाले हमारे नौजवानों को, हमारी नई नस्ल को इस इंटरनेशनल दुनिया में और उसके अक़दार और क़वानीन के मुताबिक, उसके तौर तरीक़ों के मुताबिक शाना बशाना चलने की ट्रेनिंग दे सकते हैं, जिसमें ना सिर्फ वो सर उठाकर अपने पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र करें, बल्कि पाकिस्तान की भी एक ऐसी मिसाल कायम करें कि हम भी उन पे फ़ख्र कर सकें। हमारे साथ मौजूद हैं सिद्रा कमर, जो कि CEO हैं IU स्कूल सिस्टम की। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। आपके साथ अतिया फ़रीद मौजूद हैं, जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं। इसके अलावा युमना रहमान, जिनका भी ताल्लुक़ एजुकेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट से है, यानी शी इज़ द CEO ऑफ़ एड मेंटोर्स। आप तीनों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अगर सिद्रा आप ही से ये सवाल करूँ, ये नौजवान नस्ल जो पाकिस्तान में रहते हुए भी सोशल मीडिया में हमें रिप्रेजेंट कर रही है, दे आर लाइक द एम्बेसडर्स ऑफ द कंट्री। कहाँ गैप्स मौजूद हैं? हम क्यों नहीं दुनिया की ज़बान बोल पा रहे? इंडिविजुअली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, एज अ टीम हम या एज अ कम्युनिटी हम अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। क्या गैप्स हैं? देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक कि हमें बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के अंदर ये इनबिल्ट करें कि हम अगर पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, तो वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। अगर आप देखें, हर बंदा जब एक कॉन्वर्सेशन करता है किसी के साथ भी, उनकी पहली कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है पाकिस्तान छोड़ना है, राइट? बाहर मुल्क में जाके वो अचानक से बहुत ज़्यादा उनको पाकिस्तान पसंद होने लग जाता है। बट दैट इज़ द गैप दैट वी आर फेसिंग, दैट यहाँ रह के वी एज अडल्ट्स, वी एज पीपल दैट आर इन अ प्लेस वेयर वी कैन गिव देम गाइडेंस, हम खुद जब इस चीज़ को ओन नहीं कर रहे, हम कल को बच्चों को नहीं ये बात कह सकते। तो सिद्रा, कहीं ना कहीं वो जो हमारा फ़ख्र था, हमारा प्राइड था इन बीइंग अ पाकिस्तानी, इन बीइंग अ मुस्लिम पाकिस्तानी, उसको कहीं नुकसान पहुंचा है? बिल्कुल पहुंचा है। अगर आप देखें तो अब 14 अगस्त में वो रौनक नहीं है।
रमज़ान में वो रौनक नहीं है जो हमारे बचपन में होती थी। ईद उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं की जाती है। आप अगर पुराना वक्त याद करें तो ईद से 10-20 दिन पहले से आपको एक खुशी होती थी कि ईद आने वाली है। अब अगर आप देखें तो इतनी खुशी नहीं होती, ज़्यादातर सोकर लोग गुजार रहे होते हैं। हाँ, And यानी it's more एक of वो a- जो कम्युनिटी है, आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं रोज़ाना, हम आपको ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इम्पैक्ट से भी मिलाते हैं, लेकिन इनकी बात दुरुस्त है कि जो उमूमी हमारा रवैया है उसमें कहीं ना कहीं हमें सुस्ती नज़र आती है, काहिली नज़र आती है, थोड़ी सी तखरीबकारी भी नज़र आती है। ये सवाल अगर यमुना आपके पास लेके जाऊँ, यानी आम तौर पे लोग देखेंगे कि खूबसूरत सी जगह, एक साफ़ सुथरी जगह है बैठने की, उसको वो वैसे ही रहने देंगे। हम क्यों उसके अंदर कुछ ना कुछ, यानी उसको ख़राब करना, वैंडलाइज करना, तोड़ फोड़ मचाना, नाम खुरच देना, चीज़ ख़राब करना, ये हम जनरली क्यों करते हैं? सो बेसिकली मैं जिस एज ग्रुप के साथ काम कर रही होती हूँ वो ज़्यादातर प्रोक्रेस्टिनेटर्स हैं। Okay. हम सभी ऐसे हैं, ठीक है। और बाहर के मुल्कों में जब दे गो एंड दे स्टडी एंड देन दे ट्राई टू बिल्ड देयर ओन प्लेस, वो चीज़ में एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी यहाँ पे जो बिल्ट इन हुई हुई है वो इतनी लेज़ी कॉम है हमारी, इतने लेज़ी बच्चे हैं, इतने लेज़ी हैं कि वहाँ जाके इंटरनेशनली, जो कि हमारा एक टॉपिक है, कि वहाँ पे जाके वो दे कैन नॉट एडजस्ट अकॉर्डिंगली। तो आप कहती हैं जैसे होता है ना कि एक इंटरनेशनल दुनिया का जो पेस चल रहा है, मैं वाकई इनकी बात को सेकंड करूंगी कि हम वाहिद वो लोग हैं कि अगर हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो हमें फ़ोन उठाकर या टेक्स्ट करके उसको कहना पड़ता है कि हमने ईमेल भेजी है, प्लीज़ उसको देख लें। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। तो हमने दुनिया के अगर शाना बशाना चलना है तो हमारी सिविक सेंस, हमारा वर्क एथिक वैल्यू बेस्ड होना चाहिए, बहुत हाई क्वालिटी होना चाहिए। अतः ये सवाल आपके पास लेके आऊँगी। कई लोग कहते हैं कि जी 1970 में 80 में हमारे निसाब में सिविक सेंस हुआ करती थी, जब से वो निकाला है तो और बदहाली हो गई है। क्या आप समझती हैं कि कोई और तरीका है जिससे हम हमारे मुल्क की, हमारे लोगों की सिविक सेंस को बेहतर कर सकें? अच्छा सिद्रा, इसमें जो है ना, चूँकि लिटरेसी से बहुत गहरा ताल्लुक है ना, सिविक सेंस हो गई, आपकी इमोशनल सेंस हो गई, या आपकी बाकी जो कल्चरल नॉर्म्स है, जैसे अभी आपने बात की है कि कि एक ईमेल भी लिख दिया तो उसका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा होता या कोई रिप्लाई नहीं आ रहा होता। इमोशनली लिटरेट वर्ड्स हो गए, बीइंग पोलाइट, बीइंग काइंड, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर माशरे में इन जनरल अब नहीं पाई जाती हैं। ऑल्दो कि अब तालीम का मेयार पुराने ज़माने से अब बेहतर हो चुका है, पीपल आर मोर अवेयर, लेकिन वो सेंस इसलिए कम होता जा रहा है बिकॉज आई गेस के चूँकि हम पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, इट्स मोर ऑफ एन आइडेंटिटी क्राइसिस सिचुएशन। बिल्कुल सही। और आइडेंटिटी क्राइसिस सिर्फ ये नहीं है कि हम एक मुल्क को बिलोंग कर रहे हैं या हमें यहाँ से भागकर किसी और मुल्क में हमें सेटल हो जाना है। हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस हमारे इंडिविजुअल फैमिली लेवल पे भी आ रही होती है। अच्छा, ये जो एक एटीट्यूड है जिसका सिद्रा ने भी जिक्र किया कि सिद्रा बाहर चले जाएंगे तो क्या जादू की छड़ी घूमती है, हम अगर यहाँ पे सफाई नहीं रख पा रहे, यहाँ पे कवानीन को, रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे, वाई हैव वी सेट कि वो वंस वी विल बी इन अ डिफरेंट कंट्री तो वहाँ पे विल बी एट द बेस्ट ऑफ आवर बिहेवियर्स, अपने मुल्क में हम इतने लेड बैक क्यों हैं? आपने वो सुना होगा बचपन में, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। तो दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ इट इज़। मैं अगर एक दिन यहाँ आऊँ और मुझे सफाई का बहुत शौक़ हो, लेकिन मैं अगर देखूँ कि मेरे 10 लोग हैं, उन लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता, तो इवेंचुअली आई विल टर्न इनटू दैट। यू हैव टू सी हु यू आर सराउंडेड विद, एंड वी एज अ सोसाइटी हम नहीं कर पा रहे उस चीज़ को। हम जितना भी हुकूमत को ब्लेम दे दें, हम किसी भी इदारे को ब्लेम दे दें, जब तक हम खुद चेंज नहीं होंगे। एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम योर हाउस। आप अपने बच्चों पे फोकस कर लें, आप अपने पेरेंट्स पे फोकस कर लें, दैट्स इट। अच्छा, ये भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम अक्सर कहते हैं कि जी पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात या हमारे फ़ॉरेन ऑफिस का ये काम है कि रवाबित को बेहतर बनाएं। हम में से हर शख्स सफ़ीर है। जब आप कहीं पे भी जाके कोई भी रूल तोड़ते हैं या जिसको हम कहते हैं देसी तरीका या जुगाड़ लगाते हैं, किसी ने कोई पेपर वर्क कहा, जी झूठ बोल के हम निकल गए, हमने वहाँ जाके सच झूठ बोला, लोग हमें फिर कदर की निगाह से नहीं देखते हैं। यमुना, इसका बहुत बड़ा नुकसान मुझे लगता है ये होता है कि फिर जो एक्चुअली डिज़र्विंग टैलेंटेड लोग हैं, हम उनके लिए भी दरवाजे बंद कर देते हैं। एक्चुअली ऐसा ही है इंटरनेशनली, क्योंकि अगर मैं बात करती हूँ कि मेरे रिलेशन ज़्यादा वहीं हैं और सारी काम भी मैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के लिए ही कर रही होती हूँ, हमारा पाकिस्तानी वहाँ जाके भी रूल फॉलो नहीं करता, और फिर वहाँ से वो क्या होता है कि वो लोग हमारे लिए बैन लगाना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से आई विल सेकंड विद योर वर्ड्स कि हाँ, फिर एज अ कम्युनिटी हमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इतनी तकलीफ़ की बात है कि दुनिया के बेहतरीन कई इंस्टीट्यूशंस हमारे पास मौजूद हैं, वंडरफुल फैकल्टी, एक नाम और कदर की निगाह से यूनिवर्सिटीज़ को देखा जाता है, लेकिन जस्ट बिकॉज पिछले माजी में लोगों ने उनकी गलत सनदें, फेक डिग्री, सर्टिफिकेट्स लगाए हैं, आज हमारी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी पे भी सवालिया निशान खड़ा होता है। बिल्कुल है, और वो वेरिफिकेशंस बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं।
इनफैक्ट डॉक्यूमेंटेशन जो आज से कुछ साल पहले इतनी कम थी, वो अब इतनी ज़्यादा मांगने लग गए हैं कि उनको लगता है कि वो पूरी ही नहीं है। एक जेन्युइन स्टूडेंट जिसके पास सारी चीज़ें होंगी, स्टिल वो भी अपने आप को इतना प्रूफ कर रहा होगा, इतना कर रहा होगा कि इन दी एंड वो कहेगा कि क्या ही मसला है ये। ठीक है, बिल्कुल सही। और फिर वो बिटरनेस आती है जब आपको इन मराहिल से गुजरना पड़ता है, आपको एक ही अंदाज में देखा जा रहा है, तो यकीनन उसकी तकलीफ़ भी है। अतिया, आखिरी सवाल आपसे बिफोर वी हेड फॉर अ ब्रेक, मुझे ये बताइए कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट आ गया है, जो पाकिस्तानियों को एक ख़ास नज़र से देखा जा रहा है, हमारा परसेप्शन बहुत नेगेटिव हो गया है, इसको रिवर्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रिवर्स करने के लिए दो बहुत आसान तरीके होते हैं। एक तो ये एक्सेप्टेबिलिटी कि वी आर नॉट ओनली सिटीजन्स ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, बट वी आर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग आवर फैमिलीज, वी आर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग आवर सेल्व्स। ठीक है, तो एक एक्सेप्टेंस है और एक ओनरशिप। जब तक एक्सेप्टेंस के बाद फिर ओनरशिप आती है कि हमें अपनी हर चीज़ के लिए अकाउंटेबल होना है, नॉट ओनली एज सिटीजन्स के हमें कोई सिविक सेंस भी आनी है, बट ऑल्सो एज इंडिविजुअल लेवल पे भी हमें ना वो ओनरशिप लेनी है और अकाउंटेबिलिटी लेनी है कि जो हम सही कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उसका खुमियाजा हमें भी भुगतना पड़ेगा, फैमिली को भी भुगतना पड़ेगा। एक पूरा सिस्टम उसके सर्कमस्टांसेस को फेस करता है। आई थिंक दैट इज़ ब्यूटिफुली पुट एंड व्हाट अ पावरफुल सेगमेंट दिस वाज, जहाँ हमारे एजुकेटर्स ने, हमारे माहिर नफ्सियात ने इस बात पे एम्फसाइज़ किया कि पाकिस्तान का हर बच्चा, हर नौजवान, हर खातून उसकी सफ़ीर है। और जब भी आप इंटरनेशनल फेसिंग हो, जब भी आप पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हो, तो खुदारा अपने इस प्यारे से मुल्क की बुराई ना करें, बल्कि इसकी अच्छाइयाँ बयान करें। अपने किरदार से, अपनी इक़दार से आप दूसरों को ये बताएं कि हम अच्छे लोग हैं और हमारी कहानी, हमारा काम करने का अंदाज़ बहुत मुनफरिद और अच्छा है। हम इंसाफ करते हैं अपने काम के साथ, जो हमें कहा जाता है, हम नाइंसाफ़ी नहीं करते, हम लूट खसूट नहीं करते। तो ये हम सबकी ज़िम्मेदारी बनती है। हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। हमारे साथ उलमाए कराम मौजूद होंगे, उनसे भी जानेंगे कि इस्लाम में जो सुफ़रा हैं जिनको रिप्रेजेंट करने का, इन्हें इस्लामी तारीख़ की तरफ भी देखें, मुख्तलिफ़ मुआहिदों को भी देखें कि क्या उनकी अहमियत है और किस तरह उनका एक बड़ा अहम रोल हो सकता है आज के पाकिस्तान के लिए। राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। बहुत शुक्रिया। हम इतने महव हो गए थे आपकी खूबसूरत आवाज़ में कि वाकई एहसास भी नहीं हुआ कि आपने कलाम बहुत प्यारा पढ़ा है। जैसा बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। और यकीनन हम जो आज गुफ्तगू कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाएंगे। उलमाए कराम ने अब हमें ज्वाइन किया है। जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि किस तरह आपके जो सफ़ीर होते हैं आपके लिए बड़ी से बड़ी मुश्किल को टाल देते हैं, सूरत हाल को बेहतर बना लेते हैं, कोई रास्ता, कोई गुंजाइश निकाल देते हैं। इसमें सबसे बड़ी मिसाल अगर हम इस्लामी तारीख़ की तरफ देखते हैं तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह सुलह हुदैबिया की, यानी जब आपके बदतरीन दुश्मन आपके सामने हैं और यकीनन आपके अपने असहाबा ने इस पर कुछ नकात पे ये भी इज़हार किया, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि या रसूल अल्लाह, हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है कि हम इतनी सुलह की तरफ ना जाएं या इतना कॉम्प्रोमाइजिंग स्टांस ना लें, हम आगे बढ़ सकते हैं, थोड़े अग्रेसिव हो सकते हैं। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत थी और जिस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की गाइडेंस थी और इसका फिर जो समर था वो मुसलमानों को बाद में मिला। तो इस तरह की बहुत सारी मिसालें मिलती हैं और यकीनन इस्लाम इस बात को जानता है कि आला किरदार और हाई वैल्यूज़ वाले सफ़ीर ना सिर्फ इस्लाम का, अल्लाह का, बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा के मुख्तलिफ़ मसाइल का हल निकाल सकते हैं। तो आइए ज़रा इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अबू मोहम्मद भाई और इसके अलावा हमारे साथ अल्लामा ज़ुहैर आब्दी भाई भी मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का। अबू मोहम्मद भाई, आपके पास अगर ये सवाल लेके आऊँ कि जो मसलहत थी, जो जिसको कहते हैं दूर अंदेशी थी सुलह हुदैबिया की, उस पर मैं चाहूँगी कि आप थोड़ी से रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज आपको, आपकी पूरी टीम को और आज न्यूज़ की पूरी मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा खिराज अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम इस तरह हुआ। मैंने पूरा प्रोग्राम बैठकर बेक पे आपका प्रोग्राम देखा और यूँ लगा कि जिस तरह एक सफ़ीर को या बरतानिया के हाई कमिश्नर को आपने यहाँ बुलाकर इतने घुल मिल गए उसके साथ कि उनको हमारी निजी ज़िंदगी के मामलात समझ आने लगे। वो किचन में भी गए, वो यहाँ भी बातचीत हुई। तो मेरे ख्याल में सफ़ारत का बेहतरीन तरीक़ाकार जो है वो बेतकल्लफ़ी है और आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि पाकिस्तानी अवाम का जो इमेज है
वो असल जो पाकिस्तान का मुस्बत फेस है, मुस्बत चेहरा है, वो उनकी समझ में आना चाहिए। सुलह हुदैबिया भी दरअसल में यही कुछ था। सफ़ीर जो होता है वो ये ज़रूरी नहीं होता कि जो सफारत खाने में बैठा होता है वही बंदा सफ़ीर होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि मज़दूर भी अपने मुल्क का सफ़ीर होता है, लेबर भी अपने मुल्क का सफ़ीर होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सुलह हुदैबिया की तरफ आपने इशारा फरमाया, आपके साथ वहाँ जो 1400 सहाबा थे, आपने अपने एक अमल से उन तमाम को अपना सफ़ीर बनाया। और सफ़ीर किस तरह बनाया? वो एक सुलह थी, मुआहिदा था। दरअसल में जब हम मुल्कों के साथ मामलात करते हैं तो हमें जो फ़ैसले करने पड़ते हैं वो बड़े दूर अंदेश के फ़ैसले होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम छोटा फ़ैसला करते हैं, नाकिस फ़ैसला करते हैं, वक्ती तमा या वक्ती नफ़ा हमें नज़र आता है, लेकिन उसके पीछे आने वाली नस्लों का नुकसान होता है। सुलह हुदैबिया में अगरचे सहाबा इकराम को थोड़ी देर के लिए ये भी महसूस हुआ कि इसकी जो शराइत हैं वो इतनी अजीब हैं कि हमारी तरफ से कोई कैदी जाएगा तो वो अपना वापस कर दिया जाएगा, वो वापस कर दिया जाएगा। उनकी तरफ से कोई कैदी आएगा तो वापस कर दिया जाएगा, हमारी तरफ से आएगा तो उसे नहीं किया जाएगा। हमारा कोई मुसलमान कैदी उनके पास होगा तो वो हमारे पास जब आएगा छूट के तो हम वापस देने के पाबंद होंगे। उनके साथ ऐसा मामला नहीं होगा। वक्ती तौर पर कुछ चीज़ें ये गिरां गुजरी, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूर अंदेशी को कौन जानता है? सारी कायनात को अल्लाह ताला ने एक हिस्सा अकल तकसीम की, 99 हिस्से अकल अल्लाह ने जनाबे अकेले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का वो जो फ़ैसला था, जो वक्ती तौर पर गिरां भी गुजरा कि सहाबा इकराम यहाँ तक कि अपना एहराम उतारने को तैयार नहीं थे, और फिर उम्मुल मोमिनीन ने आगे बढ़कर हुजूर से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आप अपना एहराम उतारें, सर मुंडा दें, तो सहाबा इकराम आपको देखकर उसकी इब्तिदा कर लेंगे। तो बहुत थोड़े वक़्त में हुजूर को पता था जो शराइत मैंने रखी हैं ये अहले मक्का ख़ुद इस पर अमल नहीं कर सकते। तो सिफारत के अंदर सबसे बेहतरीन चीज़ मुआहिदा होता है कि आप अपने मुआहिदे पर कितना पूरा उतरते हैं, अपनी आवाम को उस पर कितना लेकर चलते हैं। हुजूर को अपने साथियों पर एतमाद था कि मैं जो फ़ैसला करूँगा, मैं, मेरे साथी, मेरे साथ जो कबाइल जुड़े हुए हैं वो उस पर कारबंद रहेंगे, और अहले मक्का उस पर कारबंद नहीं रह सकते। यही वजह थी कि सुलह हुदैबिया की वो शराइत, फ़तह मक्का, मैं अक्सर कहा करता हूँ जुमला कि सुलह हुदैबिया न होती तो मक्का कभी फ़तह ना होता। सुलह हुदैबिया हुई, जी, सुलह हुदैबिया हुई तो हुजूर के माइंड में वो जो चीज़ चल रही थी कि ये अपना मुआहिदा तोड़ेंगे तो हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सुलह के बाद मक्का फ़तह हुआ, जो इस्लाम के दामन में इस्लाम की सबसे बड़ी फ़तह थी। इससे पहले इतनी बड़ी फ़तह कोई नहीं थी। सुभान अल्लाह। और साथ साथ मुफ्ती भाई, जिस तरह ये भी जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल कायम की कि हमें अपना कभी भी कोई मुआहिदा करें तो हमारे फिर कॉल और फेल में तजाद ना हो, उसकी पासदारी करें, उसकी पाबंदी करें। और यही वजह है कि जो बुनियाद डाली गई उसके बाद हम देखते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़तह मक्का के वाक़े के बाद, बल्कि आपके विसाल के बाद भी खुलफ़ाए राशिदीन की क़यादत में इस्लाम ने अपना सुनहरी दौर देखा, फतूहात का दौर देखा, जब एक बहुत बड़ी मुस्लिम एम्पायर फॉर्मुलेट की गई। तो वो क्या अक़दार थे, क्या वैल्यूज़ थी उस वक्त के हमारे लीडर्स की, हमारे क़ायद की, हमारे इमाम की, हमारे खुलफ़ाए राशिदीन की, जो हमें आज भी अपनाने की ज़रूरत है। और शायद वही एक वाहिद ज़रिया है कि हम अपनी जो एक स्टैचर है एक मुस्लिम उम्मा का, उसको हम वापस पा पाएंगे। ज़ुहैर भाई, ये अगर सवाल मैं आपके पास लेके आऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत उम्दा मौजू आपने आज रखा है और मैं आपको इस मौजू रखने की दाद दूँगा कि इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए और बहुत तफसील से होनी चाहिए। सिफारत की बात चल रही है, इंडिविजुअली हर आदमी सफ़ीर है अपने नज़रिए का, जिसका वो पाबंद है, अपने दीन का, अपने मुल्क का, जिसे हम कहेंगे कि अनऑफिशियली वो सफ़ीर है, बाकी ऑफिशियली होते हैं। जो आपका जो भी नज़रिया और जो फ़िक्र है उसको अगर आपने दूसरे तक पहुंचाना है तो उसके लिए जंगें फ़ैसला नहीं करती। सही। वो कोई आपकी फ़िक्र को, आपके नज़रिए को या आपके वो उस नज़रिए के जो बेनिफिट्स हैं उसको नहीं पहुंचाते। वो आप सिफारत के ज़रिए से पहुंचा सकते हैं, वो उनमें रह के पहुंचा सकते हैं कि जहां आप अपना एक मुनफरिद किरदार वो पेश करें जिससे उनको ये पता चले कि साहब इस नज़रिए का ये किरदार जो है वो इंसानियत के लिए, माशरे के लिए कितना फ़ायदेमंद है। बिल्कुल। तो ये तो हो गई सिफारत की बात। अब
आपने सवाल किया था। ज़ुहैब भाई, मैं ये सवाल बल्कि आगे ले जाना चाहूँगी। मुझे बताएं कि अक्सर मुसलमानों के ज़वाल या मुश्किलात की वजह हम कहते हैं कि जी नॉन मुस्लिम्स या दूसरे मज़हब के जो लोग हैं वो हमारे लिए साजिश कर रहे हैं। अगर एक सफ़ीर के लिए क्या इस्लामी उसूल हैं ताकि वो इख्तिलाफ़ात को दूर कर सके? हो सकता है बदतरीन दुश्मन आपके सामने, आपने ख़ुद कहा कि जंगों से हल नहीं निकलते, जंग के बाद भी आपको मुज़ाकरात की मेज़ पे आना ही पड़ता है। तो इस्लाम में सिफारतकारी के क्या उसूल हैं? इस्लाम में सफारतकारी के बुनियादी उसूल ये हैं कि आपने जहाँ जिस भी मुल्क में अगर आपको बना के भेजा जा रहा है वहाँ आपने अपने नज़रिए को पेश करना है। और उसने नज़रिए को इमाम जाफ़र सादिक का एक वो मशहूर भी है कि किसी इमाम मासूम से किसी ने पूछा कि मुझे आप तबलीग के लिए भेज रहे हैं तो मुझे कोई नसीहत कीजिए कि मैं कैसे करूँ तबलीग। तो आपने फरमाया कोशिश करना कि ज़बान कम से कम इस्तेमाल करना पड़े, मीन्स अपना किरदार पेश करना। जब तक आप अपना किरदार नहीं पेश करेंगे उस वक्त तक आप किसी को उसके बेनिफिट्स नहीं मनवा सकेंगे, उस किरदार के, उस नज़रिए के। वो किरदार ही बेनिफिट्स मनवाएगा। और तभी हम देखते हैं कि जो सफ़ीर होते हैं वो हर तरह के, हर तबका फ़िक्र के लोगों से मुलाकात करते हैं, अमीर और गरीब की तफरीक नहीं करते। अगर आपकी डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन है, ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान का अगर कोई सफ़ीर किसी गैर मुल्क में है तो वहाँ वो सिर्फ मुसलमानों से ताल्लुकात कायम करे। अगर ज़ुहैब भाई आपकी इजाज़त से यही सवाल अगर मुफ्ती अबू मोहम्मद भाई के पास ले जाऊँ कि इस्लाम में सिफारतकारी के उसूल और अख्तार क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी मुल्क में किसी को सफ़ीर बनाकर भेजते थे, वहाँ का हाकिम बनाकर भेजते थे, उस वक़्त गवर्नर या हाकिम का लफ्ज़ होता था, आज सफ़ीर का लफ्ज़ है, तो उनकी पहले तरबियत की जाती थी। उनसे पूछा जाता था अरकान इस्लाम के मुतल्लिक़, उनके मामलात को चेक किया जाता, देखा जाता था। यही वजह है कि पूरी दुनिया में जंग लड़कर पूरी दुनिया को सहाबा किराम ने फ़तह नहीं किया। आप देखें, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने सहाबा किराम की सिफारत को देखकर इस्लाम कबूल किया। सहाबा किराम के ईमान और दियानतदारी को देखकर। सफ़ीर दरअसल में होता ही वो है जो अपने नज़रिए का, अपने मुल्क का मुस्बत चेहरा होता है। अगर मेरा चेहरा ठीक नहीं है, मेरा किरदार ठीक नहीं है, मेरे मामलात ठीक नहीं है, तो इसका मतलब ये कि मैं किसी मुल्क का सफ़ीर हूँ तो मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ पीछे 25 करोड़ आवाम की। तो लोग सिर्फ सफ़ीर मुझे नहीं समझेंगे, वो कहेंगे पाकिस्तान ऐसा है। यही वजह है, देखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को किसी मुल्क में सफ़ीर बनाकर भेजा, इस पर एक बड़ी खूबसूरत छोटी सी एग्जाम्पल है कि वो अपनी ज़ात से दूसरों को मुतासर करते थे, दूसरों से मुतासर नहीं होते थे। हमारे यहाँ होता ये है कि हम जहाँ जाते हैं हम उनसे मुतासर हो जाते हैं। नबी करीम ने मदीना से एक सहाबी हज़रत खुज़ाफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सफ़ीर बनाकर भेजा। जब वो सफ़ीर की हैसियत से चले गए तो आगे बादशाह था, उस बादशाह ने देखा कि यार ये तो गरीब आदमी है, इसके कपड़े फटे पुराने हैं, पुरानी सी सवारी पे है, ऊँट का सफ़र था, ऊँटनी का, और जिस्म जो है वो गर्द आलूद है, इसे अच्छा खाना खिलाओ, ये यहाँ हमारे माहौल देखेगा, अच्छा खाना खाएगा तो ये उसी वक्त मोहम्मद मुस्तफ़ा को भूल जाएगा। हुजूर ने ख़त देकर उसे भेजा था। अब उसे ये नहीं पता था भाई ये शागिर्द किसका है, ये शागिर्द मोहम्मद मुस्तफ़ा का है, इसे तौहीद व सुन्नत की हवा लगी हुई है। खाना आया, खाना लगा दस्तरखान पे, तो सहाबी रसूल से खाना खाते हुए रोटी का एक ज़र्रा निवाला नीचे गिर गया। तो उन्होंने वो निवाला, सुन्नत याद आ गई कि हुजूर ने फरमाया जो नीचे दस्तरखान पे निवाला गिर जाए या ज़र्रा गिर जाए उसे उठा के खा लो, बाकी खाने में बरकत हो ना उसमें बरकत होगी। उन्होंने वो खाने का लुकमा उठाया, ज़र्रा उठाया, टुकड़ा उठाया, अपने मुँह में डाल दिया। तो बराबर वाले ने कोनी मार के कहा, हुज़ाफ़ा तुम्हें पता है तुम किसके दरबार में बैठे हो, तुम क्या कर रहे हो? अगर हम होते तो हम क्या कहते जी सॉरी। मगर वो नबी के शागिर्द थे, रसूल के शागिर्द थे। उन्होंने क्या कहा, अततरुकु सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउलाई अलहुमा का, इन बेवकूफ़ों की वजह से मैं अपने नबी की सुन्नत छोड़ दूँ? तो पूरा दरबार मुतासर हुआ कि यार इस शख्सियत का बज़ाहिरन हुलिया देखा जाए मगर पूरे दरबार को अपने किरदार से नबी की सुन्नत से मुतासर किया। आज अगर पाकिस्तान पे इजाज़त दीजिएगा 30 सेकंड के लिए, पाकिस्तान के पूरी दुनिया में हमने देखा, दुबई में देखा, सऊदी अरब में देखा, जापान में देखा, बहुत सारे ममालिक में देखा कि हमारा सिफारती निज़ाम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिसकी वजह से उन ममालिक के अंदर हमारे
हमारी आवाम को, हमारी लेबर को, हमारे जाने वाले इंजीनियर्स को, टेक्निकल लोगों को बेशुमार मुश्किलात का सामना होता है। और हम अपने वहाँ सफारत खाने में जब कौंसल खाने में जाते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ़ों का, शनाख्ती कार्ड के लिए, पासपोर्ट के लिए, वीज़े के लिए, वहाँ के मसाइल में बड़ी दुश्वारियाँ पेश आती हैं। हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता। उनके साथ काउंटर पे जब आप पासपोर्ट देते हैं तो रवैया कुछ और होता है, हमारे साथ कुछ और होता है। तो ये सब सिफारती किरदार होता है। जितना हमारा सिफारती किरदार मजबूत होगा, कैरियर मजबूत होगा, उतना पाकिस्तान का इमेज बेहतरीन होगा। आप बल्कि आपकी बात ही को सेकंड करते हुए कि अक्सर इसको जोड़ा जाता है हमारी इक्तिसादी ताकत से भी, लेकिन जहाँ हम अपने ख़यालात, अपने नज़रियात और अपने उसूलों की बात करें, ये आपको बहुत तक़वियत देते हैं। अगर आप इक्तिसादी तौर पे थोड़े से पीछे भी हों, तब भी अगर आप में एक हौसला है, ख़ुद एतमादी है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त की कमी है ज़ुहैर भाई, ये आपकी तरफ लेके आना चाहूँगी। अगर हम बरसग़ीर पाक व हिंद की हिस्ट्री को देखते हैं तो यहाँ पे इस्लाम जिन सफ़ीरों ने पहुँचाया वो बुज़ुर्गान दीन थे, तो उनका क्या एक किरदार है और किस तरह, क्योंकि वही वाली बात कि इस ख़ित्ते जिससे हम बिलोंग करते हैं, जंग से इस्लाम यहाँ पे नहीं आया, तो जो बुज़ुर्गान दीन और उनके शागिर्द यहाँ पहुँचे, उनको किन उसूलों के बुनियाद पे यहाँ भेजा गया था? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है और वाकई जिसको कहते हैं किरदार की सिफारतकारी, जो हमारे बुजुर्गान दीन ने, जो औलिया कराम ने, जो हिंदो पाक में दीन पहुँचाया, उन्होंने सबसे पहले तो इंसानियत को टारगेट बनाया जी। इस्लाम या शिया, सुन्नी, देवबंदी, अहले हदीस, बरेलवी, ये सब नहीं, इस इंसानियत, यानी उनके पास अगर कोई हिंदू भी आता था तो वो भी मुस्तफ़ीज़ होता था, कोई ईसाई भी आता था तो वो भी मुस्तफ़ीज़ होता था। और वो ये देखता था कि ये शख्स यानी दुनिया से कटा हुआ या दुनिया से की रानाइयों से और रंगीनियों से दूर है, लेकिन दुनिया वालों को ये फैज़ पहुँचा रहा है। सुभान अल्लाह। चाहे वो किसी तरीके से, चाहे वो मादी तरीके से हो, चाहे वो रूहानी तरीके से हो, चाहे इबादत के तरीके से हो, वो ख़ास तौर से रूहानी तरीके से जब वो इबादत में उनको दिखाते थे अपना कैरेक्टर, तो लोग मुतासर होते थे और उनके फिर वो अल्लाह ने उनको फिर अता भी किए थे इख्तियारात कि जिसकी बुनियाद पर वो लोगों के मसाइल हल करते थे। तो वहाँ पर जो किरदार वो पेश करते थे वो किसी फ़िरक़े का नहीं करते थे, किसी ज़बान का नहीं, बल्कि इंसानियत का करते थे और इंसानियत उनकी तरफ मुतवज्जह थी। इसलिए लोग, आप देखें, आज भी आप चले जाएँ हिंदुस्तान में, ख्वाजा अजमेर नगरी के मज़ार पर आप चले जाएँ, वहाँ हिंदू भी मौजूद होते हैं, वहाँ बेशक होते हैं, उसी अक़ीदतमंदी से वो बाबा अली के मज़ार पे आप चले जाएँ, वहाँ भी हिंदू मौजूद है। आपको निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे चले जाएँ, वहाँ आपको सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू भी मिलेंगे, क्योंकि ये फैज़ इंसानियत की बुनियाद पर तक़सीम हो रहा है और यही इस्लाम का दर्स है। आज हम जो ये बढ़ गए हैं, ज़रा सा कहीं कोई किसी दूसरे मसलक से, दूसरे फ़िरक़े के साथ बैठ जाए तो एक हो जाती है कि साहब वो उनके साथ क्यों, वो ये तो यूँ है तो वो तो यूँ। ये सब कुछ नहीं है, ये सब इक़्तिदार हासिल करने वालों ने हमें बांटा हुआ है ज़बान की बुनियाद पर और मसलों को। लेकिन ज़ुहैर भाई, आप ये भी तो नोटिस करें ना कि देखें, हम अगर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जहाँ पे मुख्तलिफ़ मसालिक से उलमाए दीन हमारे साथ मौजूद हैं, तो अबू मोहम्मद भाई, सवाल करने वाला भी तो यही सवाल कर रहा है ना कि मुझे ये बताइए कि मैं रोज़ा कितने बजे खोलूँ, या अगर दो मुख्तलिफ़ मसालिक से ताल्लुक़ है तो उनकी आपस में शादी, यानी हम भी तो बड़ी बातें सोच ही नहीं रहे ना। ये हमारे ख़यालात इतने थाली में मेरे ख्याल में ये जो बातें हैं ना कि आप रोज़ा कैसे अफ्तार किया जाए, मिसवाक जो है वो सुन्नत के मुताबिक कितनी होनी चाहिए, पगड़ी का हमारा जो शिमला है वो कितना होना चाहिए, ये हमारे महल्ले की मस्जिद के जो इमाम साहब हैं उनसे भी पूछा जा सकता है। हमें इंटरनेशनल टीवी चैनल पर बैठकर इससे आगे की बात करनी चाहिए। हमें, मैं ये देखूँ, मैं अपनी तरफ देखता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में जाना होता है, मैं ख़ुद सफ़ीर की हैसियत है। जी, पाकिस्तान के जितना अच्छा किरदार मेरा होगा, मैं पाकिस्तान का उतना मुस्बत चेहरा पेश कर सकूँगा, मुस्बत फेस पेश कर सकूँगा। जितनी जामे आपकी गुफ्तगू होगी, जैसा आपका मुताला होगा, ये तमाम चीज़ें लोगों को आपकी तरफ मुतवज्जह करती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही बात है कि हमारे यहाँ हमने जो, यानी अगर हम दीनी उलूम की भी बात करें, इसको हमने बहुत सतही कर दिया है। कता कलामी हो रही है, मुझे बहुत माफ़ कीजिएगा मेरी बहन, अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर नसीब फरमाए। मैं ये बात ये अर्ज़ कर रहा था कि हमें सुन्नतों पर तो मसाइल पूछने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमें अपने मामलात पर मसाइल पूछने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती कि मैंने फ़लाँ का ये हक़ देना है, मैंने बेटी का हक़ देना है, मैंने बहन का हक़ देना है, मैंने पड़ोसियों के साथ ज़्यादती की हुई है, मैं किसी का हक़ मार के बैठा हूँ, तो मेरे ख्याल में उस तरफ जाने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। अबू मोहम्मद भाई, मैं ये गुफ्तगू को दोबारा समेटने की कोशिश करूँगी। हमेशा हमारे पास वक्त कम रह जाता है, बात इतनी जामे होती है, इतना लुत्फ़ आ रहा होता है आप लोगों से सीखने का कि वाकई उसको
ख़त्म करना या उसको वाइंड अप करना मेरे लिए मुश्किल होता है, लेकिन शेफ़ सिमरा इंतज़ार कर रही हैं, उनकी डिशेस रेडी हो चुकी हैं। और यार आपने ड्रिंक भी बनानी थी, ड्रिंक बनाएंगी आज गुलबहार? बनाएंगे, फ्रिज में रखी हुई। अच्छा चले, आज क्या क्या बन चुका है, क्या कहना चाहेंगी? आज हमने बनाया है, प्लेटिंग हो चुकी है जी, देख लें, और फ्राइंग भी साथ साथ जारी है। हमने आज बनाया है चिकन लॉलीपॉप चीज़ में, और वो हमने डालडा में पकाया है क्योंकि जहाँ मामता वहाँ डालडा। और जो है हम लोग मरहबा ड्रिंक बनाएंगे क्योंकि जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार। साथ में हम लोग अपने कीमा स्टफ बंस बनाए हैं। और जो है सर्फ एक्सल आप देख रहे होंगे, दाग अच्छे होते हैं खाना पकाते हुए, बिल्कुल ना डरिए क्योंकि सर्फ एक्सल हमारे साथ है, दागों से कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आज तभी आप इतनी फ्राइंग कर पाती हैं, काटा पीटी भी करती है, उसमें फिक्र नहीं होती कि कुछ लग जाए। अच्छा जी, जो ड्रिंक बनाई है आपने गुलबहार, उसके बारे में ज़रा बताएं, उसमें क्या क्या डाला है? लेमन डाला है? लेमन डाला है, मिंट डाला है, उसको हम लोग थोड़ा सा कूटा क्योंकि मोइतो है ना, थोड़ा सा लेमन मोइतो, उसमें हमने अपना मरहबा गुलबहार ऐड करा है, उसको चिल करने के लिए फ्रिज में रखा हुआ है और फिर हम उसको सर्व कर देंगे मरहबा गुलबहार डाल के। अच्छा बताओ तो सही, जो याद कराया था तुम्हें, गुलबहार में क्या क्या है? मरहबा गुलबहार हलो में फूलों और खालिश जड़ी बूटियों के अरकियात से बना हुआ मरहबा गुलबहार। ये देखे जी कितना प्यारा बताया, ये भी अब ये एम्बेसडर बन गई है ब्रांड की। आज एम्बेसडर्स की बात हो रही ना। ज़ोहैर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे, किस तरह आप अपने किरदार और अमल से अपने आप को एलिवेट कर सकते हैं ताकि आप जिस भी जगह पे हों, जैसे कोई किचन में खड़ा है, कोई स्क्रीन पे है, हम अपने आप को बेहतरीन एक वर्जन बना सकें? मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि हमें ये जो जैसे अभी मौलाना ने भी फरमाया कि जो छोटे छोटे मसाइल है कि रोज़ा कब खोलना, ये क्या खोलना, ये छोटे मसाइल हैं और ये आप अपने बुनियादी घर की मस्जिद के पास से पूछ लें। असल चीज़ है कि हम अपना किरदार और माशरती किरदार, मैंने पहले भी किसी एक प्रोग्राम में कहा था कि इस्लाम सिर्फ दीन इबादत नहीं है, इस्लाम दीन तमद्दुन है। बहुत अच्छी बात। दीन तमद्दुन है जब, तो फिर आपको वो माशरत जो इस्लाम की है वो पेश करनी होगी। आज हमें अफसोस की बात से ये कहना पड़ता है कि मुसलमान गैर मुस्लिम का किरदार हमसे ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, हमें एक साथ मिलके यूनिफाइड होने की तौफीक अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती अबू मोहम्मद भाई हमारे साथ मौजूद थे, अल्लामा ज़ोहैर आब्दी भाई हमारे साथ मौजूद थे, सिदरा हमारे साथ थी, अतिया हमारे साथ थी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आप लोगों से गुफ्तगू नहीं हो सकी, बट यू रियली एडेड वैल्यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की यहाँ मौजूद होने का। इसी के साथ जी हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। कल बशर्ते सेहत और ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।